لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في قربى. السلام عليكم. مسجد سامنے کرام برادران ملت ماتمداران امام حسین علیہ السلام عزاداران شہدائے کربلا علیہ السلام. عزیز و مشہور معروف آیہ کریمہ ہے جو آپ اپنی زندگی میں اکثر سنتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے سامنے جب کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ کچھ لینا چاہتے ہیں تو پیغمبر نے کہا کچھ نہیں چاہیے سوائے اس لیے کہ تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو. عزیز و کائنات کا رسول اگر کچھ مانگنے کے لیے راضی بھی ہوا ہے تو صرف اور صرف اپنے گھر والوں کی محبت مانگی گئی. کائنات کے رسول نے جو کچھ دیا اگر اس کے بدلے میں کچھ اسے چاہیے بھی تھا تو صرف اور صرف حسین سے محبت چاہیے تھا, زہرا سے محبت چاہیے تھا, علی سے محبت چاہیے تھا, حسن سے محبت چاہیے تھا. اس کے عوض میں بس اتنا ہی چاہیے تھا, بقیہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہ تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا رسول یہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا کے تمام لوگ سنو کہ اس رسول کو کسی چیز کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی ہے. بس اس چیز کی ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو صرف اور صرف ہمارے گھر والوں سے محبت کرو, ہمارے گھر والوں سے محبت کرو. اگر تم محبت کرو گے تو اجر رسالت ادا ہو جائے گا. یہ کس نے کہا؟ یہ کائنات کے رسول اللہ نے کہا. کب کہا؟ کہا جب لوگ ان کے پاس خود چل کر آئے ہیں, جبکہ پیغمبر خود نہیں گئے, لوگ ان کے پاس چل کر آئے, یا رسول اللہ کچھ لے لیجئے. تو کائنات کے رسول نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, صرف تم محبت کرتے رہو, یہی اجر رسالت ادا ہوتا رہے گا. بس عزیزو یہی ماحول جو رسول اللہ بنانا چاہتے تھے, کاش پوری دنیا میں یہی ہو جاتا کہ پوری دنیا اہل بیت سے محبت کرنے لگتی, اہل بیت کے قریب ہو جاتی. اور اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر دنیا میں اس کائنات میں علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا. یعنی عداوت اہل بیت میں اللہ نے جہنم بنایا, محبت اہل بیت میں کیا بنایا؟ کہ محبت اہل بیت میں اس کائنات کو بنا دیا. اس کائنات کا خلق اہل بیت کی محبت میں کر دیا. یہ زمین و آسمان اس لیے بنائی گئی کیونکہ اہل بیت سے محبت کر رہا ہے خدا. یہ ستارے اس لیے بنائے گئے کیونکہ اہل بیت سے محبت کر رہا ہے خدا. سب کچھ اس کی محبت میں بنا دیا گیا. اب اگر اسی سے نفرت کی جائے تو نفرت کہاں تک لے جائے گی؟ اگر اہل بیت کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنائی گئی, اگر اہل بیت کے صدقے میں چاند و سورج بنائے گئے تو اہل بیت کی عداوت کہاں تک لے جائے گی؟ اس لیے کہ معبود نے خود کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے یہ بنایا. اب یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اگر ذریعہ کوئی چھوڑ دے تو وہ کہاں جائے گا؟ کہ اہل بیت کو چھوڑ دے اگر کوئی تو کیا ممکن ہے خدا تک پہنچ جائے گا؟ ناممکن سی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کی باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا, حسن کے سامنے جھکنا پڑے گا, علی کی ولایت کو ماننا پڑے گا, زہرا کے دروازے پہ سجدہ کرنے پڑے گا. کیوں کا؟ اس لیے کہ اگر ان کے بغیر کوئی زندگی گزار کے جاتا ہے وہ ایسے مانو جیسے چلتی پھرتی لاش تھی. وہ
रसूल अल्लाह ने कहा इनसे मोहब्बत करो, यही तुम्हारी कामयाबी और कामरानी है, इनके करीब हो जाओ, यही तुम्हें जन्नत तक ले जाएंगे, इनके करीब होते जाओ, जन्नत तक तुम पहुंचते जाओगे। ये आय करीमा है, बस इसी عنوان से गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह कि पैगंबर ने कहा कि इनसे मोहब्बत करो। लोग मोहब्बत करने के बजाय नफरत करने लगे। मोहब्बत करने वालों की तादाद कम थी, नफरत करने वालों की तादाद ज्यादा थी। अगर मोहब्बत करने वालों की तादाद ज्यादा होती तो मदीना हुसैन को छोड़ना न पड़ता, मुस्लिम को कूफे में शहीद होना न पड़ता और करबला बसती ना। इसलिए कि अगर मोहब्बत करने वाले की तादाद ज्यादा होती तो वो लोग मैदान में आ जाते, लेकिन मैदान में ना आना बता रहा है। इसका मतलब कि दिल में कुछ और था, ज़बान में कुछ और था। इंसान कुछ कह कुछ और रहा था, कर कुछ और रहा था। तो इसीलिए तो हुसैन ने मदीने को छोड़ा, कहा कि हम जो तुम कर रहे हो हम इसे दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। वरना कौन था जो हुसैन के बाद हुसैन बनता? कौन था जो दुनिया के सामने इनके कारनामे लेके आता? कोई नहीं था सिवाय अहले बैत के घराने के। हुसैन ने कहा कि जो तुम करते चले आ रहे हो, जो छुपता चला जा रहा है, हम उसे दुनिया के सामने रोशन कर देंगे। मदीना छोड़ दिया हुसैन ने। तारीख लिखती हुसैन मदीना छोड़ने के बाद कहां चले? करबला की जानिब नहीं बल्कि मक्के की जानिब चले। मक्के को अलविदा कह के करबला की जानिब चले। लेकिन दरमियान में हुसैन ने एक और करबला बसाई है। कौन सी करबला? कहा कूफे में करबला बसाई। का मुस्लिम का भेजना और लोगों का मुस्लिम का साथ न देना इस बात की तरफ गवाही दे रहे हैं कि इतने ज्यादा दुश्मन तरीन लोग कूफे में नजर आए कि उन्होंने मुस्लिम का एक भी साथ देने वाला कोई नजर न आया। अच्छा जो थे वो सब कैदी बने हुए थे, वो सब कैद कर लिए गए जो मुस्लिम के साथी थे। तारीख ने लिखा आज पहली मुहर्रम है। अक्सर मैंने जाकिरीन के मजलिसों को सुना है तो वो पहली मुहर्रम को जनाब मुस्लिम के मसाइल पढ़ा करते हैं, मुस्लिम के वाकयात को पढ़ा करते हैं। इसलिए कि कहा करते हैं कि उलमा खुद कहते हैं इब्तिदा जो करबला की हुई कूफे से हुई है, इंतहा शाम में हुई है। इब्तिदा जो करबला की हुई वो कूफे में मुस्लिम की शहादत से शुरू होती करबला। तो कौन है मुस्लिम? का मुस्लिम अकील के लाडले हैं। और अगर रिश्ते में देखा जाए तो रिश्ता इतना भारी है कि अब्बास के बहनोई भी हैं, अली के भतीजे भी हैं, अली के दामाद भी हैं, हुसैन के भाई भी हैं, हुसैन के बहनोई भी हैं। सब कुछ सारे रिश्ते मुस्लिम बिन अकील से। मौला अब्बास की सगी बहन की शादी जनाब मुस्लिम बिन अकील से हुई, तो सारे रिश्ते मुस्लिम से हैं। तो इसलिए तो मुस्लिम को सफीर बना के भेजा गया। जब कूफे वाले इसरार पे इसरार करने लगे कि कोई हादी नहीं, कोई रहबर नहीं और हमारी हिदायत कौन करेगा, तब इमाम हुसैन ने किसको रवाना किया? मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया। कहां से? कहा मक्के से वापस भेजकर, कहा जाओ कूफे में हमारे सफीर बनकर और लोगों की हिदायत करो। तारीख लिखती है कि जनाब मुस्लिम चले हैं कूफे की जानिब, तो साथ में तो और साथी हैं, दो लाडले हैं, खुद जनाब मुस्लिम हैं, लेकिन रास्ते में दोनों साथी साथ छोड़ देते हैं। इंतकाल हो जाता। दो बेटे साथ में मौजूद हैं, मुस्लिम कूफे पहुंच गए। तादाद से 3 लोगों के, लेकिन हालात ऐसे थे कि बेटे भी मुस्लिम से जुदा हो जाते हैं। पहला कयाम मुख्तार के घर में किया, लेकिन जब मुख्तार मदीने की जानिब चलने लगे जरूरी कामों की वजह से, अब मुस्लिम कहां चले हैं? तारीख लिखती हानी इब्न अरवाह के घर की जानिब चले। हानी के घर में है। पूरा कूफा मुस्लिम के हाथों में बंद हो चुका है। 18,000 लोगों ने जो मुस्लिम के हाथों पर बैअत की, वो तमाम कूफियों पर एक ही आवाज थी, मुस्लिम हमारे रहबर हैं, मुस्लिम हमारे हादी हैं, मुस्लिम हमारे मौला के सफीर बनकर आए हुए हैं। सबकी ज़बान पे मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था। हानी के घर में है। और इधर यजीद के भी चाहने वाले बहुत से लोग थे। उन्होंने क्या खत लिखा यजीद को? यजीद जितनी जल्दी हो सके इस कूफे की हुकूमत में तब्दीली कर दे, वरना अगर ये हुकूमत रही और मुस्लिम का ऐसे ही कूफे के ऊपर अपना काम जारी और सारी रहा तो कूफा तुम्हारा नहीं रहेगा, ये हुसैन इब्न अली का हो जाएगा। जब यजीद को यह खत मिला तो यजीद ने क्या किया?
यजीद ने फौरन तेज सवारी से अपने खत को लिखा, किसके नाम का? इब्न ज़ियाद के नाम। कौन है का? बसरे का गवर्नर है। और यहाँ गवर्नरी कौन कर रहा है? नोमान इब्न बशीर गवर्नरी कर रहा है। और खत का मजमून ये था, ये ढीला आदमी है, ये कुछ कर नहीं पा रहा। मुस्लिम धीरे धीरे लोगों के ऊपर मुसल्लत होते जा रहे हैं। लोग धीरे धीरे मुस्लिम का साथ देने पर राजी हो रहे हैं। कूफे के हालात बदलते जा रहे हैं, लोग मुस्लिम के साथ होते जा रहे हैं। जैसे ही इब्न ज़ियाद को खत लिखा, क्या लिखा? जितनी जल्दी हो सके अपने लोगों को लेकर कूफे की जानिब हो जाओ और कूफे की गवर्नरी का चार्ज तुम ले लो। एक लम्हा भी इब्न ज़ियाद नहीं रुका। खत का मिलना था कि लश्कर को तैयार करने लगा। और इसके साथ रहने वालों में एक ऐसा भी इंसान था जो मुहब्बत अहले बैत था, जो अहले बैत से मोहब्बत करता था। बस वैसे ही समझो जैसे फिरौन की बीवी आसिया थी तो फिरौन की बीवी, लेकिन मुहिब थी किसकी? अल्लाह की, मूसा की, वली खुदा की। अहले बैत से मोहब्बत थी इसको। और इब्न ज़ियाद बगैर इस बंदे के कोई काम नहीं करता था, इतना करीब था इसके। फौरन खत को लेकर कहाँ पहुंचा? शरीक के पास। तारीख लिखती है इस बंदे का नाम शरीक इब्न हबर था। जब उसके करीब पहुंचा, इब्न ज़ियाद ने कहा तुम्हें मालूम है कूफे की गवर्नरी लेने के लिए हमें अभी अभी रवाना होना है। क्यों? का इसलिए कि यजीद का खत आया है और कूफे के अंदर मुस्लिम धीरे धीरे लोगों के ऊपर मुसल्लत होते जा रहे हैं। यजीद का खत है, तेजी के साथ कूफे की गवर्नरी का चार्ज ले लो। हम तेजी के साथ कूफे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। लश्कर तैयार करो। मुहिब अहले बैत था, मालूम था कि कूफे के अंदर मुस्लिम के हाथों पर लोग बैत कर चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी वक्त मुस्लिम बिन अकील को और मिल जाएगा तो ये कूफे में जाकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसने समझाने की कोशिश की, इब्न ज़ियाद क्या कर लेगा तुम? वहां मुस्लिम के साथी हो चुके हैं, अगर जाएंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन इब्न ज़ियाद शरीक की बातों पे ना आया। फौरन का नहीं हमें जाना है। कहा ठीक है तो चलो। तारीख लिखती, काफिला चला, कुछ दूर चला, सहरा की जानिब पहुंचा। एक मरतबा शरीक ने अपने को घोड़े से गिरा दिया, पैर जख्मी हो गया। इब्न ज़ियाद को खबर दी गई कि आपका वो दोस्त जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। शरीक को बसरा रवाना कर दो और हम कूफे की जानिब चल पड़े। शरीक का प्लान ये भी फेल हो गया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इब्न ज़ियाद हो सकता ना जाए, इसलिए कि मेरे बिना कोई काम करता ही नहीं है। लेकिन ये भी प्रोग्राम फेल। इब्न ज़ियाद कूफे के करीब पहुंचने वाला। अब यहाँ पे गौर करने की बात है। आप बताइए, तारीख के उलमा ने लिखा कि जब कूफे के अंदर मुस्लिम बिन अकील आए तो एक दो आदमी मुस्लिम के साथ तो थे नहीं, 18,000 लोग मुस्लिम के हाथों पे बैत कर चुके। और जब आज की दुनिया में सऊदी अरब और अरब ममालिक की आबादी इतनी कम है तो उस वक्त कितनी कम रही होगी? कूफे की आबादी कितनी रही होगी? बहुत ही कम रही होगी। जब आज इतने कम लोग हैं तो कल कितने कम लोग रहे होंगे? इसका मतलब है कि 1/4 अगर देखा जाए तो मुस्लिम के हाथों पर बैत करने वाले लोग थे। अब आप बताइए, जहां पर 18,000 लोग मुस्लिम के हाथों पर बैत करने वाले थे, उन 18,000 लोगों के दरमियान जहां पूरा कूफा मुस्लिम मुस्लिम कह रहा था, वहां इब्न ज़ियाद जैसा इंसान कैसे घुस गया? बहुत बड़ा सवाल है। अब इब्न ज़ियाद कूफे पहुंचने वाला है, तेज दिमाग का था, तभी तो यजीद ने इब्न ज़ियाद को भेजा, वरना किसी और को भी भेज सकता था, या कूफे के अंदर किसी और को गवर्नरी का चार्ज दे सकता था। लेकिन इब्न ज़ियाद को दिया। इब्न ज़ियाद जैसे ही कूफे के करीब था, एक मरतबा उसने रेदा चेंज कर ली और रेदा ऐसी पहनी जैसे हुसैन इब्न अली पहना करते थे। सर पे अमामा वैसे बांधा जैसे ज़हरा का लाल बांधा करता था, और चेहरे के ऊपर नकाब डाली। इधर मुस्लिम के हाथों पर जब बैत हो चुकी थी तो लोगों के जहन में ये तो ख्याल आ रहा था अनकरीब ज़हरा का लाल कूफे आने वाला। मुस्लिम ये बता चुके हैं कि खत मैंने हुसैन इब्न अली को लिख दिया है, अपने आका व मौला को लिख दिया। अनकरीब है कूफे की सरजमी के ऊपर अली का लाडला आने वाला है। लोग को जो पैगाम मिला वो ये मिला, इब्न ज़ियाद नहीं आ रहा बल्कि हुसैन इब्न अली कूफे के अंदर आ रहा है। धीरे धीरे
इस धोखेबाजी के साथ इब्न ज़ियाद कूफे के अंदर वारिद हुआ और तेजी सवारी के साथ दारुल इमारा के करीब पहुंचा। नोमान ने जब भी मंजर को देखा तो नोमान कहने लगा दारुल इमारा की छत पे जाके कि ए हुसैन इब्न अली, ए ज़हरा के लाल, हम इतने भी कमजोर नहीं कि दारुल इमारा इतनी जल्दी से तुम्हारे हवाले कर देंगे। इब्ने फौरन अपने चेहरे से नकाब को हटाया और जब नकाब को हटाया तो क्या देखा इसने इब्ने ज़ियाद, फौरन चेहरे पे डाला। नोमान ने कहा दरवाजे को खोला जाए, दरवाजा खोला गया, इसलिए कि नोमान को भी ये खबर नहीं दी गई थी कि तुमसे चार्ज लेकर इब्ने ज़ियाद को दिया जा रहा है। इतना मामले को सिगरेट रखा दिया, तभी तो कूफे के हालात बदलने हैं। इब्ने ज़ियाद तेजी के साथ दारुल इमारा के अंदर गया और जाने के बाद अब इब्ने ज़ियाद जब तख्त पे बैठा तो उसने काम क्या किया? पहला काम किया उसने कि उन कबीले के सरदारों को बुलाया जो अपने अपने कबीले के सरदार हुआ करते थे। मुस्लिम का साथ छोड़ दो वरना कत्ल कर दिए जाओगे, कुछ तो डर के मारे छोड़ दो। लेकिन इसी दरमियान और भी तो जरूरत थी कि क्या कबीले के सरदार ही काफी थे? का नहीं, का हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा जरूरत यह थी कि जो हुकूमत का काजी हो वो भी हुकूमत वाला हो। अगर उसके खिलाफ होगा तो वो कुछ भी बोल सकता है। काजी को भी खरीदा गया। तारीख लिखती है कि कुफे के हालात धीरे धीरे बदलने लगे। जो मुस्लिम का साथ देने वाले थे वो धीरे धीरे बदलने लगे। जो मुस्लिम का साथ देने पर राजी थे, जो नहीं मान रहे थे, उनको कैद करके कैद खाने के हवाले करने लगे इब्न ज़ियाद। इसी असना में तारीख ने लिखा कि इब्न ज़ियाद को यह खबर दी गई कि मालूम है तुम्हारा वो दोस्त जो जख्मी हो गया था वो कूफे आया हुआ है जख्मी हालत में। इब्न ज़ियाद क्योंकि मोहब्बत शरीक से करता था, फौरन कहने लगा कहाँ है कूफे? का वो हानी इब्न अरवा के घर मेहमान है, कहानी तक पैगाम पहुंचा दो कि इब्न ज़ियाद शरीक की अयादत के लिए हानी के घर आना चाहता। एक सिपाही गया, हानी के घर में पैगाम पहुंचाया। शरीक ने जैसे बात सुनी, हानी से कहा इससे अच्छा तो मौका ही नहीं हो सकता है, मुस्लिम तुम छिप जाओ और जब हम माहौल को देखेंगे तो हम एक आवाज बुलंद करेंगे, तुम आके हमला कर देना। जब इब्न ज़ियाद मार दिया जाएगा तो कूफा तुम्हारे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। का क्या प्रोग्राम बना? का जब मैं देखूंगा हालात अच्छे हैं तो मैं पानी मांगूंगा और जब मैं पानी मांगू तो तुम तलवार लेके आना और इब्न ज़ियाद को कत्ल कर देना। इसलिए कि इब्न ज़ियाद मुझसे मिलने के लिए बिना हिजक, बिना खौफ और डर के हानी के घर आएगा, इसलिए कि मैं बहुत खास दोस्तों में से एक दोस्त। इब्न ज़ियाद आया, इब्न ज़ियाद बैठा और फौरन इब्न ज़ियाद ने शरीक से पूछा खैरियत कैसी है, क्या चल रहा है? सब बातें होने लगी। इसी दरमियान शरीक के सामने फौरन इब्न ज़ियाद बैठा। शरीक ने पानी तलब किया, मुस्लिम बाहर ना आए, पानी मांगा, मुस्लिम बाहर ना आए। एक मरतबा शरीक ने फौरन तेजी आवाज में कहा अगर इस पानी की वजह से मेरी जान चली जाए तो शरीक को कोई गम नहीं, पर इतना कहना था। एक मर्तबा तारीख लिखती इब्न ज़ियाद का सिपाही जिसका नाम माहिम लिखा गया, उसने फौरन इब्न ज़ियाद के बाजू पकड़ा, फौरन तेजी से सामने के चला, कहने लगा नहीं कुछ हालात ठीक नहीं। शरीक इतने पागल नहीं जो हानि कह रहे हैं कि जब से इनका पैर जख्मी हुआ इनका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा खराब हो गया। इतने खराब तवाज़ुन के शरीक नहीं है, तेज दिमाग के हैं ये। जब पानी पानी का मांगना कुछ सही समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए? कब मालूम करो हानि के घर में जरूर कुछ है और ये मुहिम पहले बैत में से है। कैसे मालूम करे? हानि एक कबीले के सरदार हैं, कैसे मालूम करे? हानि एक बड़ी शख्सियत में से है। अगर कूफे के अंदर हानि पे हमलावर होते हैं तो हालात बिगड़ सकते हैं। कब पहले सही रिपोर्ट मालूम करो हानि के घर में क्या। तब क्या करे? कहा एक सिपाही को लगाओ जो जासूसी करके सही खबर हम तक पहुंचाए। तारीख लिखती इब्न ज़ियाद ने सिपाही को बुलाया और कहा मालूम करो क्या ये बात सही है कि मुस्लिम बिन अकील कूफे में है और कूफे में हानि के घर में है। ये 3000 दिरहम लो, मालूम करो कूफे में हानि के घर में क्या मुस्लिम छिपे हुए हैं। तारीख लिखती है ये कूफे की गलियों में सिपाही घूम रहा, लेकिन ये कूफे के रहने वाला था। मालूम था कि अली के शिया कैसे होते हैं। तारीख लिखती उस वक्त कूफे के अंदर अली की शियों को जो पहचान थी वो ज्यादा देर तक मस्जिद में रहना, ज्यादा इबादत करना ये पहचान बन गई, ज्यादा दुआएं मांगना ये पहचान बन गई थी। ये आके कहीं ना गया, मस्जिद में बैठ गया, मस्जिद में देख रहा है
کون زیادہ دیر کے لیے رکتا ہے، کون زیادہ دیر کے لیے دعا کرتا ہے، کون زیادہ وقت مسجد میں دیتا ہے. یہ جب دیکھتا گیا تو اس کی نظر کہاں پڑی؟ تاریخ لکھتی اس کی نظر پڑی مسلم بن اوسجہ کے اوپر، جو شہدائے کربلا میں سے. تلاش کس کی ہو رہی؟ مسلم بن عقیل کی. اس کی نظر مسلم بن اوسجہ کے اوپر پڑی تھی اور اس نے مسلم بن اوسجہ کو دیکھا بہت زیادہ وقت مسجد میں رہتے، سجدے الہی کر رہے ہیں، دعا پہ دعا کر رہے ہیں. قریب گیا، کہنے لگا کہ میں پردیسی ہوں، میں علی کا شیعہ ہوں، میں حسین کا شیعہ ہوں، میرے پاس کچھ خمس کا پیسہ ہے. میں مسلم بن عقیل کو میں نے سنا ہے سفیر حسین ابن علی مسلم بن عقیل کوفے آئے ہوئے ہیں، میں انہیں یہ پیسہ دینا چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے. مسلم بن اوسجہ بھی ہوشیار تھے، فوراً کہنے لگے مجھے کیا خبر مسلم بن عقیل کہاں ہے. یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن یہ کہیں نہ گیا، اسی مسجد میں رہنے لگا. مسجد میں رہتے رہتے مسلم بن اوسجہ کے پیچھے پڑ گیا. روز آ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے. مسلم بن اوسجہ کہہ رہا ہے یقین کرو ہم شیعہ ہیں، یقین کرو ہم شیعہ ہیں. کچھ دن گزرے، یقین ہو گیا کہ یہ شیعہ ہی ہے. چلو ہم تمہیں لے کے چلتے. مسلم بن اوسجہ لے کے کہاں چلے گئے؟ حامی ابن ارواح کے گھر، جہاں پہ جناب مسلم موجود ہے. جناب مسلم کے سامنے اس نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت بھی کر لی، 3000 وہ درہم بھی دے دیے. سب کچھ دینے کے بعد ساری رپورٹ لے کر یہ چلا ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد کو خبر دی کہ ایک دم صحیح یہ خبر ہے کہ ہانی کے گھر مسلم بن عقیل مہمان ہے. فوراً ہانی کو طلب کیا گیا. ہانی کو جب طلب کیا گیا تو تاریخ لکھتی ہانی نے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ بتاؤ کیا کرے. بہت سے لوگوں کو تو قتل کر دیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو قیدی بنا دیا گیا، کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا نہ چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا اگر نہیں جائیں گے تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تمام لوگوں کی رائے اس بات پہ اکٹھا ہو گئی کہ نہیں آپ کا جانا ہی بہتر ہے. ہانی ابن ارواح چلے، ابن زیاد کے دربار میں آئے، دارالامارہ میں آئے، دروازے کو بند کر دیا گیا اور اس کے بعد مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھا گیا. ہانی نے کہا مجھے خبر نہیں. جیسے کہا مجھے خبر نہیں، ایک مرتبہ ابن زیاد نے اسی سپاہی کو بلایا، کہا یہی تمہارے گھر تو گیا تھا. جب ہانی نے اسے دیکھا تو یقین ہو گیا اب تو خبر ہے ہی لوگوں کو. کہا مسلم میرے گھر میں ہے، مسلم میرے گھر میں ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ جب یقین کے ساتھ یقین ہو گیا کہ اب تو ہم بچیں گے نہیں، یقین کر لیا مسلم ہمارے گھر میں. ابن زیاد نے اس بوڑھے شخص کو بہت مارا، بہت مارا. وقت گزر گیا، قبیلے کے لوگ دارالامارہ کے دروازے پر آگے کہنے لگے ہمارا سردار کہاں ہے، ہمارے سردار کو بلایا جائے. تاریخ لکھتی ہے اب وہی قاضی باہر آ گیا جسے خریدا گیا تھا. کہنے لگا ایک کوفے کے رہنے والوں بتاؤ کیا کوفے کے حالات برے نہیں؟ سب نے کہا بہت برے ہیں. کہا یہ بتاؤ کیا لوگوں کے ساتھ خلیفہ کو ابن زیاد کو میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں؟ سب نے کہا ضرورت ہے. کہا بتاؤ کیا ہانی بڑی شخصیتوں میں سے نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے. کیا ہانی کے ساتھ کوفے کے حالات کے بارے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے؟ سب نے کہا ضرورت. کہا بس یہی تو ہو رہا اندر. ہانی کے ساتھ ابن زیاد گفتگو کر رہا ہے، بتاؤ کوفے کے حالات کو کیسے صحیح کیے جائیں. جبکہ یہ نہیں تھا، ہانی کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا. جب ہانی کو قید کر لیا گیا اور ہانی کو قتل بھی کر دیا گیا، حالات کوفے کے بدلنے لگے. مسلم بن عقیل ہانی کے گھر سے باہر آ گئے. تاریخ لکھتی ہے کوفے کے اندر ایک شور اٹھا، ہانی کو مارا گیا ہے، ہانی کو قیدی کر دیا گیا ہے. کوفے کے اندر ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا. اب کوئی نہیں ہے جو باہر آ جائے. سب کی زباں پر ایک ہی جملہ ہے، جب ہانی جیسے کے ساتھ یہ سلوک ہوا باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تاریخ میں لکھا حسین کا سفیر جو 18,000 بیعت کرنے والے تھے، ظہر میں زیادہ لوگ، عصر میں اس سے بھی کم، مغرب میں اس سے بھی کم، عشاء کے بعد کوئی نظر نہ آیا، کوئی نظر نہ آیا. جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. تاریخ نے لکھا کہ سفیر حسین مسلم بن عقیل کوفے کی مسجد سے باہر آئے اور کبھی دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. کوفے کی گلیوں میں سفیر حسین گھوم رہا ہے. کوفے کے حالات بدل گئے. تاریخ لکھتی ہے نا کہ مغرب کی نماز کے بعد
लोग तो थे, इशा की नमाज के बाद तो कोई नजर ना आया। जब कोई नजर ना आया तब लिख लेना, तो इसका मतलब रात का सन्नाटा था। कूफे के हालात बुरे थे। अज़ादारों कैसे बयां हो मुस्लिम बिन अकील के वो मसाइब। मुस्लिम बिन अकील निकले कूफे की गलियों में, कभी इस गली से उस गली में, कभी उस गली से उस गली में। अज़ादारों तारीख ने लिखा, जब चलते चलते प्यास के आलम में चल न सके तो एक मर्तबा एक दरवाजे पर बैठ गए, मुस्लिम बैठ गए। रात का सन्नाटा है, मुस्लिम बिन अकील है। तारीख ने जब जुमले लिखे कि उस घर में उसका उस माँ का एक बेटा था। जब बेटा घर ना आया, रात बढ़ती चली गई, तो एक माँ अपने बेटे को देखने के लिए दरवाजे को खोलती है। अज़ादारों क्यों का, इसलिए कि हालात अच्छे नहीं है। हर माँ बाप परेशान, मेरा लाडला कहाँ है, मेरा लाडला कहाँ है। ये मौसमा भी परेशान है, मेरा लाल कहाँ है। अज़ादारों जब इस मौसमा ने दरवाजे को खोला तो क्या देखा कि दरवाजे के ऊपर कोई शख्स बैठा हुआ है। दरवाजे के ऊपर कोई शख्स बैठा हुआ। कहने लगी मौसमा, हे शख्स तुझे क्या मालूम नहीं कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं। अरे अगर हो सके तो अपने घर चला जाए, इसलिए कि तेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। अज़ादारों खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। अज़ादारों तारीख लिखती कहकर ये मौज़िमा वापस चली गई। जब थोड़ी देर के बाद इसका बेटा ना आया, फिर इसने दरवाजे को खोला। अब इस दरवाजे को जो खोला तो क्या देखा, फिर वही शख्स बैठा हुआ, सर को झुकाए बैठा हुआ। मौज़िमा ने कहा, हे शख्स तू सुन नहीं रहा, अरे चला जा तू अपने घर। अब जब मुस्लिम ने हाथ सर को उठाया, कहा मौज़िमा क्या मुमकिन है कि मुझे एक गिलास पानी मिल सकता। मौज़िमा दौड़ती हुई गई, पानी लेकर आई और एक मरतबा पानी मुस्लिम बिन अकील को दिया। मुस्लिम ने पानी नोश किया और एक मरतबा मौज़िमा कह के भी चली गई। अब जब दोबारा तीसरी मरतबा आई है तो मौज़िमा ने अजब जुमले कहे, ए शक क्या तू सुन रही रहा, अरे अपने घर क्यों नहीं चला जाता। मुस्लिम ने जब जुमले कहे, ए मौज़िमा तू ही बता, अरे जिसका कोई घर न हो वो कहाँ चला जाए। इतना सुनना था। तौवा ने सवाल कर लिया, बताओ कि आखिर तुम कौन हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं सफीर हुसैन मुस्लिम बिन अकील हूँ। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के नाम मुस्लिम सुनना था। तवा घर के अंदर लेकर आती है, एक मर्तबा कहने लगती है कि मुस्लिम, अरे तुम्हें मालूम नहीं मेरे आका, मुझे मालूम नहीं, मेरी गुस्ताखी को माफ कर दी। बेटा आया घर में, क्या देखता है कि माँ हुजरे में बार बार जा रही है। मालूम हुआ बेटे को कोई और इसके अंदर हुजरे में नहीं, बल्कि जिसकी तलाश इब्ने ज़ियाद को है वो मुस्लिम है। इस घर में दौड़ता हुआ इब्ने ज़ियाद के करीब गया, कहने लगा इब्ने ज़ियाद मुस्लिम को ढूंढने की जरूरत नहीं, मुस्लिम हमारे घर में है। लीजिए 500 का लश्कर चला मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए। तवा के दरवाजे पे घोड़ों की टापों की आवाज आई। एक मर्तबा मुस्लिम ने तलवार निकाली, कहा ज़ईफ़ा मुझे जाने दे। अज़ादारों तारीख लिखती है तौबा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम ने कहा, ए तौबा तुम्हें खबर है मेरी वजह से तुम्हारे पर्दे को मुहाफिज रखना। मुस्लिम बाहर आए, जैसे मुस्लिम बाहर आए हमलावर हो गए। अज़ादारों हमला करना आसान था मुस्लिम के लिए। अज़ादारों तारीख लिखती है कि अगर हुसैन इब्ने अली का ये सफीर कूफे की गलियों में ना होता तो जंग कैसे करता ये दुनिया को पता चलती। करबला में जंग करना आसान था, लेकिन कूफे में जंग करना मुश्किल था, इसलिए कि करबला का मैदान था। अरे कूफे में गलियां थी, कभी इस गली से फौजी आए, कभी उस गली से आए। अज़ादारों तारीख लिखती, लश्कर पे लश्कर मांगे गए। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि एक को मारने के लिए इतने चाहिए, क्या तुम्हें मालूम नहीं अली का लाडला है। लेकिन जब तब भी न मार पाए, तब ये सोचा गया कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। कहा तारीख लिखती है कि मुस्लिम के लिए गड्ढा खोदा गया, मुस्लिम को कहां से ढकेला गया। तारीख लिखती सामने से फौज आई ताकि मुस्लिम का घोड़ा पीछे की जानिब भागे।
सामने से नहीं पीछे की जानिब चला। जब मुस्लिम का घोड़ा धीरे धीरे पीछे कदमों को बढ़ा रहा था, एक वक्त वो भी आया जब गड्ढे के अंदर मुस्लिम भी नकीर घोड़े के साथ आ गए। तलवार वालों ने तलवार चलाई, नेज़ा वालों ने नेज़ा चलाई, गिरफ्तार करके मुस्लिम को लाया गया। एक मर्तबा मुस्लिम ने कहा, गिरफ्तार करके जब लाया गया तो जनाब मुस्लिम के सामने सिपाही ने कहा, ए मुस्लिम, तुम्हें मालूम नहीं अमीर को तुमने सलाम नहीं किया? फौरन कहा कि मेरा अमीर सिर्फ हुसैन इब्न अली है। ये कान जहरा के कानों, ये आवाज जहरा के लाल के कानों में टकराई। जहरा के लाल ने वहीं से आवाज दी, मुस्लिम तुम पर हमारा सलाम हो। आज के बाद तारीख लिखेगा, गरीबुल वतन हुसैन था, अमीर मुस्लिम था। लीजिए, मुस्लिम के सरोतन में जुदाई होती है, तारीख लिखती है। मक्के और करबला के सफर के दरमियान जहरा के लाल का काफिला था। एक मर्तबा जमीन पे बैठ गए हुसैन इब्न अली, कहने लगे अब्बास इब्न अली से, भैया देखो इस रहवार से पूछो, इस घुड़सवार से पूछो कहाँ से आ रहा है। तारीख लिखती, जब घोड़े वाला करीब अब्बास के आया, भैया तू कहाँ से? भाई यार मैं कूफे से आ रहा हूँ। नाम कूफा का सुनना था। हुसैन ने तुझे ही कहा था अगर कूफे से आ रहा होगा मेरे करीब लाना। जहरा के लाल के करीब इस घुड़सवार को लेके गया और कहने लगा, ए जहरा के लाल क्या पूछते हो? अरे जब मैं कूफे से चला था तो आपके भाई के जनाजे को कूफे की गलियों में फिराया जा रहा था। अब्बास जैसे सुना, कहे भैया मुस्लिम, अरे कूफे के अंदर माबूद हमारी सवालत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। माबूद जहाँ भी शान है कलाम की जान मान से माबूद इमाम ज़माना की सुन्नत से तालीम करना और हम को इनका बना अपना तकब्बल